Hello and welcome to View Sports Scouts. मेरा नाम है रक्षित and today I am joined by a very special guest, voice over artist, commentator, anchor, MC, but most importantly a huge football fan. Welcome Anant Tyagi. Thanks, Akshay. Thank you so much for having me and really excited about what we're looking to do over the next few episodes. Thank you, Anant. So, what have you been up to over the past these days? Actually, just resting up. India finished their football games in Kolkata, and now we've qualified for back-to-back Asian Cups now for the first time in our history. I'm obviously talking about the men's national football team. So, a job well done by them, hopefully done by me as well. And now I get to relax a little bit and enjoy some of the women's Euros action that's going to come up. तो मजा आने वाला है और देखते हैं कि कौन सी टीम ऊपर आएगी. Absolutely. I mean, summer चल रहा है, football ज़्यादा है नहीं देखने के लिए. So I think Women's Euros is something which I'm really going to enjoy at least इस जुलाई के month में. So excited to get going. शुरू करते हैं अपना ये preview between England and Austria. So अनंत, अगर आप इंग्लैंड की बात करें, they are a team जो obviously host हैं इस particular tournament की, and उनके ऊपर काफ़ी expectation है. तो आप उनकी chances को कैसे rank करेंगे to win this particular tournament, especially at home? यार वो गाना याद है रक्षित, इट्स कमिंग होम. जब भी इंग्लैंड में कोई भी टूर्नामेंट होता है तो शुरू हो जाते हैं वहां पे सारे पब्स में जो है एक्टिविटी, देयर इज अ बज. और मैं इंग्लैंड में रहा भी हूँ 6 साल, वहां पे पढ़ा भी हूँ, मैं वहां पे नौकरी भी की है. इनफैक्ट माय प्रीमियर लीग कमेंट्री करियर स्टार्टेड देयर, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट कमिंग होम मींस टू देम एंड आई नो कि इस टूर्नामेंट पे कितनी निगाहें होने वाली हैं. और उसके साथ रक्षित, देयर कम्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. Now pressure can, bog you down like it has happened with England's men's team in the past, but it can also galvanize you into becoming something that you didn't know you could. But I think with the women, कुछ ऐसा ही होने वाला है. They are obviously one of the favorites to win the competition, which I think is no secret now. Incredible form, नई मैनेजर जो हैं, जो ऑलरेडी ये टूर्नामेंट पहले जीत चुकी है एक और टीम के साथ. उन्होंने ही इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया था पिछली बार यूरोज में. तो एक मैनेजर जिसको जीतना आता है, अपने घर पे खेल रहे हैं in places like Old Trafford and hopefully a final at Wembley जहां पे इतने सारे supporters होंगे. So you wouldn't put it past England to finally do what the men haven't been able to do in their backyard. Absolutely. England, of course, are a team who are managed by Sarina Wiegman, जो actually Netherlands की manager थी और 2017 में they actually won the Euros. So she certainly knows how to win big tournaments. England are also a team जो 8 consecutive World Cup अपने qualifiers जीती थी. 68 गोल स्कोर करे थे और एक भी गोल कंसीड नहीं करा था. दो दे सर्टनली आर अ टीम जो काफी फाइनली बैलेंस्ड है अगर आप अटैक और डिफेंस की बात करें. अनंत, बात करते हैं ऑस्ट्रिया की. काफी सरप्राइज किया था ऑस्ट्रिया ने लास्ट टाइम आउट. लास्ट यूरोज में एक्चुअली सेमीफाइनल तक वो पहुंचे थे. सो कैन दे कॉज एन अपसेट इन दिस मैच अकॉर्डिंग टू यू? In this match, no. I think if you want an early prediction from me, definitely not. In this tournament, now, Rakshit, unko log zyada jante hain compared to what happened in 2017. They were playing their first ever women's Euros. They were a new commodity, and you know what happens with an unknown commodity? They can surprise the opposition. अब स्पेन जानती है वो क्या कर सकते हैं, अब फ्रांस जानती है वो क्या कर सकते हैं, अब इंग्लैंड डेफिनेटली जानती है वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी मेट देम इन द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर. 27 नवंबर को एक दूसरे से वो मिल चुके हैं सनडरलैंड के स्टेडियम में. So they don't have that X factor in them anymore. Things are known, players are known. A lot of their players play in England only for Arsenal, etc. So सबको अच्छी तरह मालूम है. But their form has been great, and I'm sure you'll touch upon that because weaker opposition के खिलाफ भले ही उन्होंने मैचेस जीते हों, लेकिन winning momentum से बेहतर कोई चीज नहीं है because nothing succeeds like success. So I think they're starting on the right note, and maybe not England, but they will be fine. They will find it much easier against the other two teams in their group, which are Norway and Northern Ireland. टोटली अग्री. आपने फॉर्म की बात करी. सो दे आर हेडिंग इनटू दिस टूर्नामेंट विद 5 कंसेक्यूटिव विंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, एंड ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंस्टिल करेगा उनके प्लेयर्स में. हेड टू हेड की अगर बात करें अनंत, सो 7 मैचेस प्लेड बिटवीन दिस टू टीम, 7 विंस फॉर इंग्लैंड. कैन यू सी अ कंफर्टेबल इंग्लैंड विन इन दिस मैच? Yes, I will see a comfortable England win. I think there will be a nervous start to England. जैसे कि होता है जब आप घर पे खेलते हो और ओल्ड ट्रैफर्ड जैसा ऐतिहासिक मैदान हो तो थोड़ा प्रेशर तो आ ही जाता है. बट इट्स ऑल्सो सेल आउट क्राउड. जैसे कि हमें पता है विमेन्स यूरोज में इंग्लैंड के सारे मैचेस जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं. They might be nervous starters, but eventually they've got too much class, too much quality. They've got this attacking flair in their side. I don't see them, failing to put 3 or 4 past Austria quite comfortably. Yeah, I totally agree with you. मेरा prediction for this match is a 3-1 win for England. क्लीन शीट की बात करते हैं अनंत. ऑब्वियसली फैंटेसी प्लेयर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये सबसे जरूरी है कि क्या इस मैच में इंग्लैंड क्लीन शीट रखेगी या नहीं. तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा?
आई थिंक नहीं रख पाएगी। उसका सिंपल कारण यही है जिससे हमने इस बात की शुरुआत की थी कि घर पे खेल रहे हैं, घर पे खेलते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर आ ही जाता है। छोटी मोटी मिस्टेक्स, भले उनके दो सेंटर बैक्स 50 60 70 मैच खेले हो इंग्लैंड के लिए, लेकिन हल्की सी गलती, अ पेनल्टी, एंड यू नेवर नो, somebody like a Nicole Yeah. Villa could come to the party and say and grab an opportunity. तो इसीलिए मैं क्लीन शीट नहीं देखता, बट फिर भी द मार्जिन ऑफ विक्ट्री शुड बी गुड। लाइक यू सेड 3-1, मैं सोच रहा हूँ शायद 4-1 भी हो सकता है, बट वो 1 होगा तो फॉर इंग्लैंड फैंस maybe not a clean sheet just yet, maybe the next game. So according to Anant Tyagi, England will not keep a clean sheet in this particular match. So According to you also. me as well, of course. So इसी स्कोर लाइन को अनंत we'll keep in mind and हम टीम फॉर्मेशन अपना स्टार्ट करते हैं. So Okay. पहले बात करते हैं हम फॉरवर्ड्स की. इस मैच में काफी सारे फॉरवर्ड ऑप्शंस हैं, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड की बात करें. सो अगर आपको कुछ फॉरवर्ड पिक्स करने होंगे फैंटेसी टीम के लिए, तो सबसे ऊपर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन होगा? यार, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा कि अगर आपने इतना इंग्लैंड को बिग अप किया है एक प्रीव्यू में और आप इंग्लैंड के फॉरवर्ड्स ना लो। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम 3 फॉरवर्ड्स लेंगे, और आई थिंक अगर हम 3-4 गोल मारने की बात कर रहे हैं तो 3 फॉरवर्ड्स इंग्लैंड के बन के तो लाजमी है यार। तो आई हैव डिसाइडेड टू गो विद somebody like Lauren Hemp, जिनकी इतनी बात की गई है, जिन्होंने इतनी सुर्खियां बटोरी हैं, with all the right reasons, of course. She is being considered by a lot of England greats as the next big thing to come out of not just England and Europe but world football, and she's going to catch them all by surprise in this tournament. मुझे ऐसा लग रहा है। पेडिग्री शायद उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी यंग है। she's just about arriving on that big stage and she is extremely composed in front of goal, तो मुझे लगता है उनको हाफ चांस भी मिलेगी तो वो गोल मार सकती हैं। That's the kind of forward that she is. So Lauren Hemp would be one of my picks. The other one that I wanted to go with was Beth Mead, because number one, after having got the snub for the Olympic team, she herself has said कि यार ओलंपिक्स में मेरा सिलेक्शन ना होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर के लिए, क्योंकि उसके बाद शी इज रीडिस्कवर्ड हर गोल स्कोरिंग फॉर्म। आर्सेनल के लिए खेलती हैं, so she knows the backyard very very well. और I think with a point to prove, somebody like Beth Mead, with her caliber, with her pedigree, with her experience, she could be a very dangerous customer. Once again, just like Lauren Hemp, very cool and calm and composed in that 18-yard box. So Hemp or Mead goal मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है. So as you can see on the screen, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो इंग्लैंड के हुए थे उसमें बेथ मीड वाज द वन जो ओवरऑल सबसे प्रोलिफिक थी उनके लिए। 12 गोल्स एंड 12 असिस्ट उन्होंने सिर्फ 6 स्टार्ट्स में प्रोड्यूस करे। सो शी इज समवन हु हैड 24 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन ओनली 6 मैचेस, व्हिच इज फिनोमिनल। उसके अलावा जो अनंत ने पॉइंट आउट किया कि लॉरेन हेम्प इज समवन जो एक राइजिंग स्टार है इंग्लिश फुटबॉल की। सो गोल्स में उन्होंने 6 गोल स्कोर किए, बट शी आल्सो गिव 10 असिस्ट। सो शी इज समवन जो फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लैंड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकिंग टैलेंट्स हैं। अनंत, अगर मैं एक और नेम थ्रो इन करूं फॉरवर्ड्स में, जैसे आपने कहा 3 फॉरवर्ड के साथ हम जा रहे हैं, सो आई विल गो फॉर एलन वाइट, जो ऑब्वियसली इज अ प्लेयर काफी एक्सपीरियंस्ड है इंग्लैंड के लिए। शी इज आल्सो मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी ऑन पेनल्टीज। शी इज समवन जिन्होंने हेम्प के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करी है मैन सिटी में। सो आई थिंक इन दोनों का लिंकअप प्ले विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इंग्लैंड को प्रोसीड करना है फार एंड डीप इनटू द टूर्नामेंट। शी इज आल्सो समवन जिन्होंने 10 गोल्स स्कोर करे थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सो शी इज द थर्ड अटैकिंग पिक जो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। मिडफील्ड में चलते हैं अनंत। तो कौन से वो क्रूशियल की मिडफील्डर्स हैं जो फैंटेसी प्लेयर्स को वो डिफरेंस मेकर हो सकते हैं उनके कॉन्टेस्ट में? Since we're going with 3 midfielders, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था काम यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड के पास फॉरवर्ड्स में ही नहीं मिडफील्डर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। But I thought I'll go with something slightly different, because I thought let's give Austria some credit for where they are at the moment, and which is why I decided to go with somebody who's known by the name of Barbara Dunsty. She's almost like a wild card entry for me in this midfield. She's got the pace यार रक्षित, उसके पास टेक्निकल एबिलिटी है, प्रिसाइज फिनिशिंग है उनके पास, 24 साल की है, तो she's currently at the peak of her powers is what I would say. Had an outstanding season for Eintracht Frankfurt as well, posing a real threat to the opposition with her pace. तो मुझे ऐसा लगता है that she could be somebody who could be a game decider, because she has the ability to dribble past opponents 1v1 situation में बहुत अच्छी अगर काउंटर करती है ऑस्ट्रिया, because इंग्लैंड के पास ज्यादा पोजेशन रहेगा। तो somebody like a Barbara Dunst who has a good shot on her could be a very dangerous customer. So I would definitely pick Barbara Dunst.
Other than that, I was thinking it was a very difficult decision. क्योंकि इंग्लैंड की लिया विलियमसन तो है ही, बट because I'm trying to give a little more credit to Austria over here, I thought I'll go with somebody like Sarah Zadrazil. I know that Sarah Punningham is also somebody who a lot of people keep an eye on, but मुझे ऐसा लगता है कि Sarah Zadrazil बहुत underrated है और इस टूर्नामेंट में वो काफी important role निभा सकती है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया को वो डिफेंस से अटैक का ट्रांजिशन ढूंढना है तो बायर्न म्यूनिख की ये मिडफील्डर जो है, who did the similar job for Bayern Munich as well when they made the quarterfinals of the Champions League, she could be very very important because she's very composed on the ball, Rakshit, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ना उनकी क्रूशियल सिचुएशंस में बहुत अच्छी है. जब स्टैंड्स भरे होंगे ओल्ड ट्रैफर्ड के, जब इंग्लैंड का पूरा प्रेशर होगा, उनका एक्सपीरियंस जो है मिडफील्ड में बहुत क्रूशियल हो सकता है. तो ये दो मिडफील्डर मेरे, आप बताओ आपके कौन है. सो पहले लेट मी थ्रो सम स्टैट्स. अगर आप बारबरा डंस की बात करें तो वो थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर थी ऑस्ट्रिया के लिए इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, 4 गोल्स एंड 1 असिस्ट के साथ. सो बेसिकली निकोल बिला एंड बारबरा डंस्ट, इन दोनों का लिंकअप प्ले ने बहुत गोल्स प्रोड्यूस करे हैं ऑस्ट्रिया के लिए. सो अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रिया इस मैच में गोल स्कोर करेगी, आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस मैच में बारबरा डंस्ट उस गोल में इन्वॉल्व हो सकती हैं. और बात करिए आपने ज़ाड्रजिल की, उन्होंने भी एक्चुअली अपने डिफेंसिव एबिलिटी के साथ अटैकिंग वाइज भी 2 गोल और 2 असिस्ट प्रोड्यूस करते. तो शी इज समवन जो मे बी अपनी बॉक्स टू बॉक्स एबिलिटी के साथ इंग्लैंड के डिफेंस को थोड़ा ट्रबल कर सकती है. सो अगर मैं अपनी पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर विलियमसन. आई थिंक शी इज समवन जो बहुत ही अंडररेटेड पिक है फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. शी इज ऑल्सो समवन जो कभी कभी डिफेंस के बीच में 3 एट द बैक सिस्टम बना देती है इंग्लैंड को अगर वो मिड मैच फॉर्मेशन चेंज करते हैं. बट अनंत, आई थिंक व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हर इज कि वो मोस्टली 90 मिनट्स खेलती हैं. एंड अगर आप ऑब्वियसली जितने मिनट्स फील्ड पे होंगे आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे. सो शी समवन जो मिडल ऑफ द पार्क में खेलेंगी, मोस्ट लाइकली 90 मिनट्स कंप्लीट करेंगी. शी विल कंप्लीट अ लॉट ऑफ पासेस, आपको टैकल और इंटरसेप्शंस में भी काफी हाई नंबर दे सकती हैं. सो विलियमसन इज समवन जो आप ले सकते हैं. ऑल्दो आई आल्सो फील कि कर्बी is also someone जो आप विलियमसन की जगह में भी अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग मिडफील्ड ऑप्शन. सो काफी बॉयल डाउन कर सकता है मिडफील्ड में कि वो ही डिफाइन करे कि आप जीतेंगे या नहीं. बट आई थिंक विलियमसन विल बी माय पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. Can I just add something to that as well, Rakshit? Because आपने विलियमसन की बात की, हमने बेथ मीट के बारे में यही बात की थी कि she has a point to prove. I think Williamson as a captain also has a big point to prove, and a lot rests on her shoulders. Steph Houghton क्योंकि अपनी अकीलीज और एंकल इंजरी के बाद अपनी फिटनेस नहीं प्रूव कर पाई, और कोच ने कहा भी कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन थी मेरे फॉर्मर कैप्टन के साथ कि वो यूरोज नहीं खेलने वाली, जो कि घर पे होने वाला है. तो एवरीवन नाउ इज लुकिंग एट द न्यू कैप्टन एंड सेइंग she needs to do her job properly, because does she deserve the captain's armband perhaps? And because of that, I think Williamson will rise to the challenge, और इसीलिए भी वो बहुत क्रूशियल होने वाली है क्योंकि इंग्लैंड के अटैक और डिफेंस को जोड़ने वाली जो ग्लू है वो उनकी कैप्टन है. एब्सोल्युटली, वेरी वेल पुट. सो अनंत, चलते हैं अब डिफेंस की तरफ. 4 डिफेंडर ने पिक करे हैं, 2 आपकी पिक, 2 मेरी पिक. लेट्स स्टार्ट विद यू. Oh, okay. So since I've gone with an Austrian theme, even though मैंने इंग्लैंड को विनर घोषित पहले ही कर दिया है अपने प्रेडिक्शन में, let's start with somebody like a Weinrother, because I feel like Laura Weinrother, who's a right back for Austria, does her defensive duties right. क्योंकि डिफेंस पे इतना ज्यादा दबाव और जोर होने वाला है ऑस्ट्रिया का, तो जाहिर है लॉरा वाइनरॉथर की जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है. Had a strong Champions League performance with Hoffenheim. Very versatile defender as well, and played for a number of clubs. तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस है. इस तरह की टूर्नामेंट में हम इस टीम को जिस तरह से बना रहे हैं रक्षित, उसमें एक्सपीरियंस को हम थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे भी रहे हैं. और क्योंकि लॉरा वाइनरॉथर आर्सेनल से जुड़ चुकी हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में 2022 में, मुझे ऐसा लगता है द कंफर्ट फैक्टर combined with her experience and her versatility just makes her a different kettle of fish going into a big game like this, which is a tournament opener in England's backyard. Of course, so England में वो ऑलरेडी खेल चुकी हैं, so I think definitely वो experience of playing in the country उनको help कर सकता है, at least to get over the jitters in the opening match of the tournament. Right, absolutely. एक और पिक दूंगा ऐसे डिफेंडर में, क्योंकि as a Chelsea fan, which is not a hidden fact, I would love to go with somebody like Millie Bright. We're going with 4 defenders, तो बाकी के 2 आप बताना. लेकिन Laura Weinrother, Millie Bright, again somebody who's I think 27, 28 at the peak of her powers. Chelsea के लिए वो आप ही ने कभी मुझे बोला था, I remember कि वो जॉन टेरी वाला रोल निभाती है. That's exactly what she's going to do for the English national team as well. I think a combination with Alex Greenwood could be key if they start together, but Millie Bright, I'll keep my eyes on, not just on this side of the pitch, but on the other side also, perhaps during set pieces.
राइट. सो एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा आपके अबाउट योर डिस्कशन अबाउट द ऑस्ट्रियन राइट बैक. सो जो उनकी दूसरी फुल बैक है हैंडशॉ, सो नॉर्मली क्या होता है कि वाइनरॉथर जब डिफेंसिव अटैकिंग फेजेस में शी नॉर्मली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैक थ्री, और जो उनकी दूसरी फुल बैक है हैंडशॉ, वो जनरली थोड़ा और अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट करती हैं. सो आई थिंक इस पर्टिकुलर मैच के लिए जहाँ पे आपका एक इंग्लैंड जैसी टीम के साथ मैच है, आई थिंक वाइनरॉथर इज अ ग्रेट पिक. बट मे बी लेट्स से जब ऑस्ट्रिया का एक वीकर ऑपोजिशन के साथ मे बी मैच होगा इन दिस टूर्नामेंट, देन मे बी यू वुड वांट टू गो फॉर अ फुल बैक जो थोड़ा और अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट करती हैं, तो वो हैंडशॉ इस समन जो आई थिंक आप पिक कर सकते हैं इन दैट सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो. सो मेरे अगर दो पिक्स की बात करें अनंत, सो पहले मैं आपने ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं ग्रीनवुड, जो मिली ब्राइट की सेंटर बैक पार्टनर है. अगर आप गोल स्कोरिंग की बात करें, शी इज अ ब्रिलियंट हेडर ऑफ द बॉल, 2 गोल दो असिस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. बट ये दोनों प्लेयर्स आर इंग्लैंड्स रॉक इन डिफेंस. काफी टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दोनों के हैं, और ऑब्वियसली एज सेंटर बैक्स ऑफ अ टीम जो एक्सपेक्टेड है कि डोमिनेट करेगी पोजेशन इन दिस मैच, आई फील कि ब्राइट और ग्रीनवुड दोनों आपको बहुत ज्यादा पासिंग पॉइंट्स भी दे सकते हैं. सो प्योरली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मैं ग्रीनवुड को रिकमेंड करूंगा. एंड ऑफ कोर्स आई विल क्लोज आउट माय टीम विद लूसी ब्रॉन्ज. उनको कैसे नहीं पिक करें, ऑफ कोर्स अ फॉर्मर बैलन डॉर विनर, एक डिफेंडर अगर बैलन डॉर जीते तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका क्या कैपेबिलिटी होगी. शी सफर्ड अ बैड इंजरी उसके बाद, सो आई कांट से कि उन्होंने अपनी वो फॉर्म रीडिस्कवर करी है, बट अगर वो इवन क्लोज आ जाती हैं अपनी इनिशियल फॉर्म जो उन्होंने दिखाई थी लाइक अ कपल ऑफ इयर्स अगो, देन शी माइट बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. सो लूसी ब्रॉन्ज इज समवन जो फ्रॉम अ प्योर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू आपको सब कुछ दे सकती हैं. सो शी इज गोइंग टू बी माई लास्ट पिक फॉर इन द आउटफील्ड एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. गोलकीपर की बात करें अनंत, सो वी हैव वन स्लॉट लेफ्ट. हु इज द गोलकीपर फॉर आवर फैंटेसी टीम? Yeah, since the theme is Arsenal, I am going to go with Manuela Zinsberg because हमने एक वाइनरॉथर को तो पिक किया ही है, उनके साथ उनके ठीक पीछे मैं जिंसबर्ग को खिलाना चाहूंगा, बट विद लॉजिक बिकॉज आई थिंक Anand, are you sure you're backing England for the win? so far so good. अब यार देखो, अब पॉइंट तो कहीं से भी आ सकते हैं इस तरह के टूर्नामेंट में. you just never know who can surprise, and we are still hoping that Austria will turn up. ऐसा नहीं है कि मतलब they'll be demolished. Let's not forget कि ये लग्जमबर्ग या लैटविया या नॉर्थ मैसेडोनिया और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है जिनको इंग्लैंड ने तबाह किया है अभी रिसेंट मैचेस में. सो दिस इज स्टिल ऑस्ट्रिया हु विल hopefully under Irene Fuhrman, who's been with the under 19s and the assistant coach, you know, she'll come up with the goods. But coming back to the point, Zinsberg is sleepy because I think her goal is going to be seriously peppered by the likes of Hemp and Ellen White and Beth Mead, who are our combined picks for forwards. So Zinsberg has got to turn up. She's going to give you plenty of saves, 100%, because she's a very good goalkeeper, which is why Arsenal have invested in her. So मैं तो उनके साथ जाऊंगा unless Rakshit has better ideas. Absolutely, I totally agree with your pick as well. Save points, I think वो definitely दे सकती हैं because as you said, the Austrian goal will be peppered with a lot of shots. So अब बात करते हैं अनंत एक रिस्की डिफरेंशियल पिक के बारे में, जो एक ऐसा प्लेयर जो इस मैच में सरप्राइज कर सकता है और जो लोग उस पर रिस्क लेते हैं उनको काफी रिवॉर्ड कर सकता है. सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. Okay, now you're going to laugh even harder because आप कहोगे तुम्हारा prediction यही है. Are you sure? मैं honestly Chloe Kelly को लेने वाला था because of her Man City pedigree and because of the way she almost has this telepathic connection with the other two Man City forwards in White and in Lohem. But मैंने कहा नहीं, अगर हमें एक बिल्कुल ही रिस्की पिक के बारे में सोचना है तो निकोल बिला, जैसे हमने लॉरेन हेम की बात की, the next big thing, the new kid on the block who's got everybody by surprise. निकोल बिला जो है, she was a women's player of the year in Austria in 2021. Bundesliga में वो, you know, she was already the top scorer last season. I think उन्होंने काफी गोल काफी असिस्ट मारे थे, 22 गोल 7 असिस्ट थे from what I can recollect. Natural striker है, and like we mentioned about Lauren Hemp and you know White and Beth Mead, anticipation कमाल का है रक्षित, उनका cool head रखती हैं, and I think अगर ऑस्ट्रिया को इसमें इस टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करना है, Nicole Billa will be key, and it's not easy because their legendary striker retired and all eyes were on उनकी जगह कौन लेगा, and Nicole Billa was the person who's being looked at as the taking up that mantle. So while I know that Barbara Dunst is our wild card in the midfield, वो दूर से गोल मारेंगी, लेकिन अगर पास से कोई मारेगा तो Nicole Billa हो सकती है. That's very well put and totally agree with your risky pick as well.
सो अगर मेरे को एक रिस्की पिक चूज करनी है तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा रिस्की है. आई विल गो फॉर किएरा वॉल्श जो इंग्लिश मिडफील्डर है. नाउ आई थिंक अगर आप 6 अटैकर्स की बात करें जो इंग्लैंड के लिए ऑपरेट करेंगे, आई थिंक सबकी प्रायोरिटी लिस्ट पे वो सबसे लास्ट में होंगी. बट अनंत, आपने कहा था कि ये ओपनिंग मैच है ऑफ द टूर्नामेंट, इंग्लिश आर द होस्ट एज वेल, सो देयर इज अ गुड चांस कि एक बहुत ही नर्वी लो स्कोरिंग ओकेजन हो सकती है. सो ऑल्दो वी हैव प्रेडिक्टेड गोल्स इन दिस मैच, there is a very good chance कि let's say a 1-0 और a 2-0 England win होती है in this particular match, जहां पे जो हमने attackers pick करे maybe they do not contribute goals and assists. So in that scenario I think someone who plays in a defensive midfield role, someone जो tackle और interception numbers per 90 जिनके काफी high है, is someone जो I think एक difference maker हो सकते हैं आपके this particular match में. So Walsh I think is my boring but also a high risk high reward pick for this particular match. So Anant will be back with me tomorrow जब हम नॉर्वे और नॉर्दर्न आयरलैंड का मैच प्रीव्यू करेंगे in the same group जो है ग्रुप A. So thank you all for watching. Thank you so much Anant once again for joining us on View Sports Scouts. I'll see you very soon. Cheers guys.